نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہارٹ ٹو ہارٹ کے سیگمنٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک ہے ویئر از Allah's ہیلپ۔ تو اس سیشن کو مزید اس میں بھی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ چند چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس طرح سے یوزلی ہمارے سوسائٹی میں ہم لوگ خاص طور پہ خواتین کو اگر دیکھیں تو وہ ایک خاص تھنکنگ پیٹرن جو ہے جو ان کا بنتا ہے کہ بعض اوقات جس طرح ہماری زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ ہم خود کو بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں، جہاں ہر دروازہ جو ہے وہ ہمیں بند نظر آتا ہے اور ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اور خواتین کے حساب سے کہ جس طرح ان کی اکثر ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ آزمائشیں آتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، سسرال کے مسائل ہوتے ہیں، مالی مشکلات ہوتی ہیں، پھر معاشرے کی طرف سے پیئر پریشر ہوتا ہے، بیجا بعض دفعہ آ، روایات اور پابندیاں اور رسول۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک عام عورت کی زندگی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی پھر بھی کامیابی نہیں ملی، میں نے اتنی دعائیں کی لیکن میری مشکل ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں لگتا ہے جس طرح کہ شاید اللہ ہمیں چھوڑ چکا ہے، ناؤذ باللہ، یا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں نے بہت صبر کیا لیکن کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا، یہ مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں اللہ سن ہی نہیں رہا، ناؤذ باللہ، یا میری مشکلات کب ختم ہوں گی، میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اکثر آپ لوگ بھی یہ سنتے ہوں گے اپنے ارد گرد۔ تو یہ وہ سوالات ہیں اور خیالات ہیں جو ہر عورت کے ذہن میں کسی نہ کسی مرحلے پر ضرور آتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا، ہم آج جب دیکھیں گے کہ قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے اور وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے، لیکن ہم آج خاص طور کے اوپر جو فوکس کریں گے، ہمارا فوکس ہوگا سورۃ الفتح کی آیات 1 to 5۔ ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ جو چیز بظاہر ہمیں نقصان دہ لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہمیں شکست ہو گئی ہے، در حقیقت وہ اللہ کی سب سے بڑی حکمت کا حصہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ خیالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب ہمارے جذبات اور حالات، یعنی جذبات ہمارے ایک اندر کا ایک جو ہے انوائرمنٹ ہے، حالات ہماری باہر کی انوائرمنٹ ہے، تو وہ ہمارے یعنی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں انوائرمنٹ جو ہے نا، وہ ہمیں لگتا ہے جس طرح ہمارے قابو سے باہر محسوس ہونے لگتی ہیں ہمیں، جب ہمارے ذہن میں ناکامی اور بے بسی کے خیالات جو ہیں وہ جنم لینے لگتے ہیں۔ یہ ساری علامات جو ہے نا یہ ہماری ذہنی اور جذباتی صحت کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی حکمت اور مدد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ بظاہر شکست نظر آنے والی چیز بھی در حقیقت اللہ کی دی ہوئی فتح مبین ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں کبھی بھی بے اور مددگار نہیں چھوڑتا۔ سورۃ الفتح ہمیں بتاتی ہے کہ جب حالات بدترین لگ رہے ہوں، ہر دروازہ جب بند نظر آئے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا در اس ٹائم کھلنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسباب نزول پہ بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا یہ جانیں گے پہلے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اور پھر اس کو ہم ریفلیکٹ کریں گے اپنی لائفز کو اس پر۔
तो हिजरत के तकरीबन छठे या सातवें साल के दरमियान ये वो वक्त था जब बल्कि सातवें साल के बाद की बात है। ये वो वक्त था जब इस बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी थी। गजवा बदर भी हो चुकी थी, गजवा अहद भी हो चुकी थी, गजवा खंदक भी हो चुकी थी। और साहबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप उम्रा या हज कर रहे हैं और काबा की जियारत कर रहे हैं। और इस तरह अपने साथियों को आपने ये बताया, और तकरीबन अब बहुत बड़ा जो एक लोगों का जो था ग्रुप था वो इकट्ठा हो गया। बाज उलमा के नज़दीक के 1400 के करीब थे, बाज के नज़दीक इससे भी ज़्यादा थे। और यहाँ पर ये था कि लोगों ने क्योंकि वो नबी ने ख्वाब देखा, और नबी अंबिया जो होते हैं उनके ख्वाब सच्चे होते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हमें उम्रे के लिए जाना चाहिए। और उस वक्त उन्होंने मक्का में जाने का मतलब ये था कि क्योंकि उनसे जंग हो चुकी थी और वो इलाका जो था और वहाँ की पूरी ट्रैवलिंग जो करनी थी वो खतरनाक बात थी और उसमें खतरा था। और जब इन्होंने जाना था तो उन्होंने जब एहराम पहन के जाना था तो उसमें उन्होंने लड़ाई तो नहीं करनी थी। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम कुरैश को ये पैगाम नहीं, कुरैश जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्योंकि नहीं मानते। और वहां पर अगर हम उनको अगर पता चलेगा तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को इस तरह से लें कि हम उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल अगर कहीं जा रहा है और हालात भी इस तरह के हो कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ एनिमिटी हो, तो वहां पर ये चीज़ जो है वो मुमकिन है कि अगली पार्टी जो ना वो ये सोच रही हो। चुनाचे मुसलमान जो थे वो रवाना हुए और रास्ते में, और उनको ये डर भी था कि वो इनकार कर देंगे अगर हम उनको बताएंगे तो ये लोग चले। कुरैश को जब ये खबर मिली कि मुसलमान आ रहे हैं और इसलिए वहां पर आकर तो उनको उन्होंने ये सुना कि वो मुसलमान जो है ना वो मक्के की तरफ आ रहे हैं। और वहाँ मतलब बुनियादी तौर के ऊपर खाना काबा की तरफ आने वाले जो जायरीन होते थे उस पर हमला नहीं किया जाता था, यानी कि उनकी जो ये रवायत थी कि वो एहराम पहने हुए जो आते थे लोग उनके ऊपर हमला नहीं करते थे। और उन्होंने देखा कि वो गैर मुसल्लह हैं और उन्होंने एहराम पहन रखा है और वो हज की तैयारी कर रहे हैं और वो जंग के लिए नहीं आ रहे, और ये बिल्कुल वाजह था क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे और वो एहराम में भी थे। तो फिर क्या हुआ कि अब थोड़ा सा वो भी मखमसे में मुब्तला हो गए, उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि हम अभी इस टाइम पर क्या करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जो हैं वो हुदैबिया नामी जगह पर रुक जाते हैं। और यहाँ पर कुरैश से फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। चनाचे कुरैश ने कुछ लोग भेजे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुज़ाकरात के लिए भेजा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को। और इस तरह वो के किसी मुआहदे पर जो है आने की कोशिश करें। इसी दौरान एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सालिस बनाकर भेजा था, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला को, तो उनको कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह क्या हुआ कि क्योंकि ये अब एक मुआहदे के लिए भेजा था, और जो मुआहदे के लिए जो जाते हैं थे लोग वो उनका यानी कि उनको कत्ल नहीं किया जा सकता था। तो जो अगर उन्होंने कत्ल किया तो अब ये था कि उनके साथ उनके खून का बदला लिया जाएगा। और इस वक्त उन्होंने जो थी वो बैत करनी शुरू की। और जब बैत तकरीबन मुकम्मल हो गई तो बाद में मालूम हुआ कि वो शख्स जिसे भेजा गया था वो सही सलामत वापस आ रहा है, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि बातचीत का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो जहन में रखिए कि सहाबा जो मदीना से जो सफ़र करके हुदैबिया तक पहुंचे थे,
تو یہ سفر بہت تکلیف دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو اس ٹائم پہ سفر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پیدل چل کے اور جانوروں کے اوپر کیا جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے نا کہ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ سفر ایسا نہیں تھا۔ اور پھر وہ صحرا تھا، اور صحرا میں بھی کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ذرا تھوڑے تھوڑے رستے کے اوپر کوئی ہوٹل بنے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح سے کوئی کھانے پینے کا سامان ہوگا، تو وہ بھی سہولیات نہیں تھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کیونکہ اس ڈر سے کہ کہیں قریش ان پر حملہ نہ کرے، تو انہوں نے ایک غیر روایتی جو راستہ جو تھا وہ اختیار کیا تھا، اور وہ راستہ کافی زیادہ مشکل راستہ تھا، جس میں کہتے ہیں کہ چٹانیں، گرم چٹانیں تھیں، اور راستہ جو تھا مطلب وہ کانٹے اور اس طرح کے خاردار جھاڑیاں اور اس طرح کا وہ راستہ تھا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ اور ان میں میجورٹی جو لوگ تھے وہ کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ امیر نہیں تھے کہ ان کے پاس سفر کا جو سامان ہے، کوئی جوتے اور وہ چیزیں کی بہت اچھی ہوں۔ تو اکثروں کے کپڑے بھی جو تھے وہ پھٹ گئے تھے، اور جوتے بھی پھٹ گئے تھے، اور وہ زخمی ہوئے ہوئے تھے پاؤں اکثروں کے، اور ان کے احرام پہ بھی خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ تو یعنی کہ وہ اتنی مشکل سے اتنی سخت گرمی، صحرا کی گرمی میں اور اتنے سخت حالات میں یہ سفر طے کر کے آ، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ مکہ ان کا گھر تھا اور وہ ان کے اندر وہ طلب تھی، تو وہ وہاں پر پہنچے تھے ممکنہ طور پر عمرہ کرنے کی طور لیے وہاں پر پہنچے تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں پر قریش نے کیونکہ ان کو روک دیا اور ان کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ آخر کار وہ ایک معاہدے پر پہنچے، اور اس میں بہت ساری اصلاحات تھیں۔ اصطلاحات اس میں یہ تھیں جس میں زیادہ تر جو اصطلاحات تھیں وہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھیں، یعنی کہ جس طرح کہ یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ اس سال واپس سے لے جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں۔ پھر یہ تھا کہ اگر کوئی غلام پکڑا جاتا ہے مکہ والوں کا، تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی غلام یا قیدی پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی شرائط جو تھیں وہ تھیں جو کہ اس ٹائم پر صحابہ کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا کہ وہ اس کو مانے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ احرام اتار دیں اپنے، اور اپنے بال کٹوا لیں، اور یعنی کہ کیونکہ احرام کی حالت میں تھے تو احرام اتارنا تھا، تو پھر یہ چیزیں جو تھی کرنی تھی، اور ساتھ پھر قربانی کرنی تھی۔ تو یہ پہلا موقع تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا، جس کی فوری تعمیل جو تھی نا، صحابہ نے اس کو فوری طور کے اوپر اس کو نہیں مانا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو سمعنا و اطعنا والے لوگ تھے، اور یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنی اور ہم نے نہیں مانی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن یہ ساری صورتحال ان پر کتنی مشکل تھی، ہم اس کو ابھی آگے ڈسکس کریں گے، ابھی میں صرف آپ کو وہ سٹوری سنا رہی ہوں۔ اور اسی طرح پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، اور وہ آپ کو نصیحت کرتی ہیں، آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رول ماڈل ہیں، آپ اپنا احرام اتار دیجئے، بال کٹوا دیجئے، اور قربانی کریے، تو صحابہ آپ کی پیروی کریں گے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہی ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ سارے کام کیے۔ لہذا یہاں پر ایک تو غور کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہمیں ظاہر اور حقیقی کے درمیان فرق کے بارے میں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ ظاہراً محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ شکست کھا گئے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ جیت گیا، اور دوسرے فریق کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہے، لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل مختلف تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی تھی، کہ اللہ نے در حقیقت ان کے لیے کھول دیا تھا، حالانکہ ان کے نزدیک حالات اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس نظر آتے تھے۔ تو اس طرح پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ظاہر اور باطن کے درمیان فرق کیا ہے۔
کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ہماری، ہم اگر اس چیز کو اپنی زندگی کے حالات پر رکھ کر دیکھیں تو بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہار گئے، ہمیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی، ہمارا بہت نقصان ہوا، ہم سے کوئی چیز چھین لی گئی۔ اور لیکن حقیقت میں ہم سب، آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، اگر ماضی میں اپنے کچھ واقعات کو ریلیٹ کریں تو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہوگا کہ فلانے وقت میرے ساتھ کسی نے یہ کیا تھا اور میرے سے یہ چیز چھین گئی تھی۔ لیکن آج اگر آپ ماضی کے ان تلخ چیزوں کو، تلخ جو واقعات، ان کو اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آپ کو یہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ اگر وہ انسیڈنٹ یا وہ واقعہ یا وہ حادثہ یا وہ نقصان آپ کی زندگی میں نہ ہوا ہوتا تو آج آپ کے پاس جو بلیسنگز ہیں، آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں، جو علم ہے، بے شک وہ مال ہے، بے شک گھر کی خوشی ہے، زوج کی خوشی ہے، اولاد کا سکون ہے، دل کا سکون ہے، جو چیز آپ کو عطا کی ہے، وہ اس واقعے کے اگر نہ ہوتا تو وہ آپ کو آج یہ بھی چیز نہ ملتی۔ وہ واقعہ ہوا، وہ یا وہ حادثہ ہوا یا وہ نقصان ہوا، تو اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ تو ہم آج اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو جب حدیبیہ کے معاہدے کے وقت مسلمانوں کو یہ لگا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے، اور اتنی بڑی جد و جہد کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ تقریباً اس کے 2 سال کے اندر ہی مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اس کے پیچھے مسلمانوں کی ایک پوری سٹرگل ہے، پوری سٹرگل ہے۔ اور اتنی بڑی جد و جہد کے بعد یہ بات بہت غور طلب ہے کہ کیونکہ اس کے 2 سال کے اندر ہی مکہ فتح ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا، تو جب کامیابی بالکل قریب تھی تو کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کی ایک آزمائش آئی کہ آپ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو ریلیٹ کریں کہ ان لوگوں کا دل کس طرح تڑپتا تھا مکہ کے لیے، ان کو کس طرح سے وہاں سے نکالا گیا تھا، ہم اپنے اوپر اگر یہ چیز رکھ کے دیکھیں نا، کوئی چیز ہم سے کوئی چھین لی گئی، کوئی ہمارا حق ہو، کوئی ہمارا گھر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے ایسا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں کسی پر بھی نہ لائے، لیکن وہ چیز بالکل آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ملنے والی ہے، اور پھر اس چیز سے آپ کو جو ہے وہ پھیر دیا جائے تو انسان کی اس ٹائم کی جذباتی اور نفسیاتی جو ہے کنڈیشن کیا ہوگی۔ تو حدیبیہ کے معاہدے کے وقت مسلمانوں کو یہ لگا کہ وہ ناکام ہو گئے، اتنی بڑی جد و جہد، اور نبی ساتھ ہیں، اور نبی نے خواب بھی دیکھا ہے، لیکن خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا تھا نا کہ آپ نے اسی سال جانا ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر حکم پر بھی عمل کرنے کے لیے کچھ تردد ہوا، تھوڑا سا تردد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیات اتاری۔ کون سی آیات؟ سورۃ الفتح کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا اس کو۔ جی، اب یہ ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روشن فتح، واضح فتح قرار دیا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز، یہ آیت جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل یا ناکامی ہم اگر کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے انتھک محنت، خلوص کے بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، صحابہ کی بے بے انتہا خلوص اور محنت، اور جس طرح سے اتنی پرسیکیوشن، اور پھر اطاعت کے بعد اتنی پرسیکیوشن، اطاعت کے بعد جب یہ لمحہ جب آیا تھا حدیبیہ کا، تو یہ دل پر ایک سخت بھاری پتھر تھا۔ اور کیا اب آپ اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کے ریلیٹ کریں کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ بہت محنت کی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، کسی اور اپنے کسی کام میں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ وہ تو بالکل الٹ الٹ آ رہا ہے۔ تو
उस टाइम ये वाला जो था ना, इवेंट जो था ना, वो बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत बड़ा नफसियाती और जज्बाती इम्तिहान था कि अभी समीना व अताना ही करना है। तो वो परेशान थे, दिल गिरफ्तार थे, और उमर रज़ी अल्लाह जैसे अजीम साहबी भी ये सवाल कर रहे थे कि ये कैसी फतह है। बस इससे ज्यादा नहीं उन्होंने कहा कि ये कैसी फतह है, क्या ये फतह है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल फरमाई जो अल्लाह की हिकमत का एक जबरदस्त पैगाम थे। और हदीस में आता है कि जो उम्मे सलमा के मशवरे से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की तो सहाबा ने फॉलो किया। तो ये आयत हमें बताती है कि कभी कभार आजमाइश की शक्ल में बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है, और हमें भी अपने मुश्किल वक्त में यही सोचना चाहिए। शायद यही मसला दरअसल हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए का एक जरिया हो। अच्छा, हमारे यहाँ कामयाबी को ज्यादातर क्या समझा जाता है, क्योंकि हम दुनियावी हिसाब से सोचते हैं ना, तो हम उसको नताइज के साथ जोड़ देते हैं। जबकि सिराते मुस्तकीम पर चलने का हुक्म है, मंजिल तक पहुंचने का वादा नहीं है। मंजिल तो आगे है ना, जन्नत है। दुनिया में भी बाज़ दफा हमें कोई इनाम मिल जाता है, वो अल्लाह की तरफ से रहमत है। लेकिन हमारे यहाँ कामयाबी को जब दुनियावी नजर से देखते हैं ना, तो हम उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना देते हैं, नताइज के साथ जोड़ देते हैं। अगर शोहर नेक है, ख्याल रखने वाला है, तो हम सब समझते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो सख्त मिजाज हो तो हम उसको नाकामी समझते हैं। और अगर बच्चे अच्छे निकले तो हम मुतमईन हो जाते हैं, और अगर वो गलत रास्ते पर चले जाएं तो हम खुद को नाकाम समझना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सीधे रास्ते पे रखे। अगर रिश्तेदार इज्जत दें तो हम खुश होते हैं, अगर नहीं तो हम उदास हो जाते हैं। तो हुदैबिया का मुआहदा से हमें हमें ये चीज सीखने को मिल रही है कि बज़ाहिर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा धक्का था, लेकिन हकीकत में ये वादा था जिसने मक्का के फतेह को उसके रास्ते को हमवार किया था। आपकी जिंदगी में भी जो चैलेंज आ रहे हैं, अगर वो आपको अल्लाह के करीब कर रहे हैं तो वही आपकी कामयाबी है। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो इसे नाकामी मत समझे, हतमी नाकामी मत समझे। हो सकता है अल्लाह ने इसके पीछे आपके लिए कोई बड़ी फतह रखी हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। कितनी वाज़ेह आयत है कि उस इम्तिहान की वजह से अगर हम साबित कदम रहें, अगर हम सब्र और तकवा को पकड़ के रखें, तो फिर क्या है कि हमारे गुनाह माफ हो जाएं। और फिर ये है कि अल्लाह ताला अपनी नेमत और हमें फिर सिराते मुस्तकीम पर जमा दे। बात तो ये कि हम फिर यानी कि उस रास्ते की तरफ पे उस रास्ते पे चल पड़े, फिर ताकि हम अपनी मौत तक जो है ना, अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर रखे। और उसके बाद क्या आयत है कि वयंसुरकल्लाहु नस्रन अजीजा, कि वही तो है, तुम्हारी अल्लाह ताला जबरदस्त मदद करेगा। तो अब यहाँ पे मदद से क्या मुराद है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है कि अल्लाह की मदद। और और फिर इससे अगली आयत जो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है कि बड़ी खूबसूरत आयत है कि हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फी कुलूबिल मुमिनीन, कि ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दिल में, आ, मोमिनों के दिलों पर सकीनत नाजिल की, तसल्ली नाजिल फरमाई, ताकि इनके ईमान के साथ और ईमान बढ़े। और आसमान और जमीन के लश्कर अल्लाह ताला ही के हैं, और अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। तो इन दोनों आयत को इकट्ठा ही देख लेते हैं कि पहली तो चीज़ ये है कि इस दवाजी जिंदगी के मामलात में हम जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन हैं, तो हम उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह की मदद और सुकून कहाँ से मिलता है। तो इस दवाजी जिंदगी में अगर मुश्किलात हैं और आपका दिल बेचैन है, तो अल्लाह की मदद, सब्र और दुआ और शुक्र में ये चीज़ें पोशीदा हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सब्र का मतलब क्या है। नॉर्मली हमें यही कहा जाता है, सब्र का मतलब है रुक जाना। ये ठीक है? क्या आप में से मुझे कोई ये बताएगा किस चीज से रुक जाना? कोई आप में से कोई बेशक मुझे टेक्स्ट कर दे, या वैसे बोल के बताना चाहते हैं तो बताएं।
किस चीज से रुकना? यानी कि क्या रुकने का मतलब ये है कि किसी को किसी के इज़्दिवाजी जिंदगी में हो या वैसी जिंदगी में कोई और मसाइल हो, तो क्या वो बस खामोश होकर बैठ जाए और जो कोई कुछ कर रहा है तो उसको करने दें? इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोशिश से नहीं रुकना। रुक जाने को हमें कहा है, लेकिन कोशिश करने से नहीं रुकना। रुकना है मनफी सोच से, मनफी अमल से, और मनफी रद्द अमल से। इससे रुकना है। अगर माशी हालात कमजोर हैं तो सब्र करें, यानी सब्र का मतलब क्या है कि कोशिश करें, सही रास्ता इख्तियार करें, सही मीन्स इख्तियार करने की कोशिश करें, वो सब्र है। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं कर रहा तो शायद हम नेक नहीं हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे जहनों में आ जाती है, यानी शायद हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम मेरे गुनाहों की सजा है। हम बाज़ दफ़ा अपने आप को खुद ही गिल्ट में ले जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा आती है। हमें बस इस वक्त, इसका वक्त और इसके तरीके पर यकीन होना चाहिए। जब बंदा जब बंदा अपने रब के आगे हाथ फैलाता है और अल्लाह ताला से मांगता है, तो ये हो नहीं सकता कि रब उसको खाली हाथ लौटाए, क्योंकि वो गयूर है, उसको हया आती है कि अपने दर पर आने वाले को वैसे ही लौटा दे। तो अल्लाह ताला की मदद जो है वो क्या होता है, एक तो ये कि अल्लाह ताला की मदद जब आती है तो दिल में सुकून पैदा करती है, दिल के अंदर हिम्मत आ जाती है, आपको वो रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको वो तरीके समझ आ जाते हैं कि आपने इस मसले को, इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं। और बाज दफा वो अपॉर्चुनिटीज और वो चीजें हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, लेकिन हमें नजर ही नहीं आ रही होती, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा होता, तो अल्लाह ताला हमें वो विजन दे देता है, अल्लाह ताला हमारा ध्यान उधर लगा देता है। आजमाइश में हिकमत देता है ताकि हम मजबूत हो सके। नहीं, आजमाइश एक टेस्ट है ना, तो इसके बाद तो दर्जा ऊपर ही जाता है ना, टेस्ट पास करेंगे दर्जा ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाएगा तो आपको अल्लाह ताला एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक बस एक तो बसारत है ना, जो कि अल्लाह हम इंसान पैदा होता है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, एक बसीरत होती है। तो वो बसीरत जो है ना, वो चीजों की जो सामने नजर चीजें आ रही है ना, उनकी फिर रियलिटी के अंदर जाते हैं कि बेहतर आपको वो चीजें, आपका देखने का एक जाविया बदल जाता है। फिर यह है कि अल्लाह ताला जो है हमें बेहतरीन लोगों की सोहबत भी अता करता है। तो मोमिनों के दिलों पर अल्लाह ताला ने सुकून उतारा, यानी कि अगर आप पर कोई मुश्किल आई है तो अल्लाह ही के हुक्म से आई है ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आई, वो आ ही नहीं सकती, ये यकीन होना चाहिए। और इसी तरह ही कि वो मुश्किल अल्लाह के हुक्म के बगैर ख़त्म भी नहीं हो सकती। हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई हिकमत है जो वक्त के साथ वाज़ेह होगी। और ये भी चीज़ याद रखिए कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर मुश्किल नहीं डालता। और अगर कोई मुश्किल आपको अल्लाह के करीब कर रही है तो वही आपके लिए कामयाबी है। अगर, अच्छा, इसमें एक चीज जरूर जहन में रखें कि अगर किसी कोई कोई किसी बहन को या किसी खातून को अपने शौहर की तरफ से कोई सख्त मसाइल का सामना है, तो वो कोशिशें क्या क्या कर रही है, यानी सब्र जो कर रही है, सब्र का मतलब है कि वो क्या क्या कोशिशें कर रही है उन चीज़ों को हल करने के लिए कि जो मसाइल है वो ख़त्म हो। और फिर यहाँ एक बात अहम है कि जुल्म के खिलाफ अगर कोई एक एक चीज एक हद से बढ़कर जुल्म की शक्ल इख्तियार की हुई है, तो जुल्म के खिलाफ हाथ, जुबान और दिल तीनों का इस्तेमाल है ना, या वो आपके ईमान के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक जाके उसको टैकल कर सकते हैं। और फिर ये भी है कि अगर किसी को लगता है कि वो किसी एक छोटी चीज को खत्म करने के लिए, बुराई को खत्म करने करेगी तो बड़े बुराई में, फितने में फंस जाएगी, तो वो एक सारी हिकमत की चीजें हैं कि उसको सारे मामलात को हिकमत के साथ भी तो लेकर चलना है। तो बहरहाल इसमें मुश्किल जो हमें आती है वो हमें अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए आती है। और उसमें हमें
अंबिया के बहुत सारे वाकयात जो हमें मिलते हैं, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकयात हैं, और बहुत बेशुमार वाकयात हैं जो हमें हम इन चीज़ों को उनसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अभी वक्त की भी किल्लत है, और हमारा मौजू जो है ना वो हुदैबिया ही है, तो मैं अपना कॉन्टेक्स्ट उधर ही रखना चाहूंगी। फिर ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अपने करीब कर लिया, आपको हिदायत दे दी, आपके दिल में सुकून अता कर दिया, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि माल नहीं है, कोई घर नहीं है, दुनिया को न जाने वाली चीजें नहीं, लेकिन अगर आपके पास ये दौलतें हैं ना, ये वाली दौलत है, तो फिर फिर उस दुनिया की कोई भी दौलत जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुश्किल वक्त में हमारी आम जज्बाती और नफ्सियाती जो कैफियत है, हमारी इमोशनल स्टेटस और हमारा साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है वो बहुत मैटर करता है। यानी कि एक सोच ये आती है कि मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, कभी बेहतर नहीं हो सकती। ये एक डिप्रेसिव, एक मायूसी वाली सोच है। अगर मेरे साथ एक बुरा वाकया पेश आया तो मेरा सारा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। तो यानी कि एक जिंदगी की एक छोटे किसी इवेंट को लेकर आप उसको अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर जो अभी आगे आने वाली है, आप उसको पेस्ट नहीं कर सकते ना। फिर क्या है कि अल्लाह ताला ने शायद मुझे छोड़ दिया। ये सारी वो सोचें हैं जो कि शैतान के वसवसे हैं और हमें दूर करते हैं ताला से। फिर सब बेबसी में अपने आप को महसूस करना है कि मैं कुछ भी कर लूं कुछ ठीक नहीं हो रहा। बाज दफा गुस्से में आ जाता है इंसान कि जी मेरे साथ ही हमेशा नाइंसाफी होती है। बाज दफा खौफ का शिकार होता है कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इंसान के अंदर, हमारे अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी लेके आती है। यही जज्बात के जो लेवल थे किसी हद तक सहाबा हुदैबिया के वक्त जो थे ना उनके दिल में भी आए। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने सुकून और इत्मीनान नाजिल किया और इन्हें यकीन दिलाया कि हकीकी फतह भी आने वाली है। तो यहाँ जो है ना बहुत से पहलू मिलते हैं। एक तो सहाबा के ईमान का लेवल, फिर आजमाइश, और दिल में ऐसी तकलीफ आई, मगर उन्होंने मनफी रद्द अमल से अपने आप को रोका। उस मौके पर जब तकलीफ की शिद्दत बहुत थी, दुख बहुत था, मगर उन्होंने मनफी रद्द अमल से रोका, और अल्लाह ने भी इनके दिल को थाम के रखा। तो साबिका जो लाइफ थी, जो नेकियां थी, उन नेकियों ने और उन कोशिशों ने, क्योंकि वो लोग थे जो नेकियों के लिए आगे बढ़ते थे, फस्तबिकुल खैरात वाले बंदे थे ना, वो नेकियों में आगे बढ़ते थे, तो वो उन्होंने अपना लाइफ का जो पैटर्न बनाया हुआ था, उस लाइफ की उस वजह से उनका दिल जो था ना वो बिखरने से बच गया। दिल को अल्लाह ताला ने थाम लिया। उन्होंने उस टाइम पे अपने जज्बाती हिजान को किसी मनफी रद्द अमल से रोक दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को थाम लिया। और उनके जब दिलों को थामा, तो अब इसमें भी क्या है कि उसमें अल्लाह ताला ने उनको यानी कि उनके ऊपर सकीनत भी नाजिल कर दी। ये नहीं किया कि वो उस टाइम तो खामोश हो गए, क्योंकि इसमें भी दो चीजें आती हैं, उसको मैं हम अभी देखते हैं आगे, कि इसमें बाज दफा ये होता है कि अगर हम किसी वक्ती तौर के ऊपर जो है अपने आप को किसी रवैये से दबा लें, तो हमारे जहन में बाज दफा मनफी चीजें पैदा हो जाती हैं। तो अ, यहाँ पर ठहर जाए, मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर हमारे जज्बाती और नफसियाती जो थोड़े हमारे होते हैं, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ में बेचैनी महसूस करते हैं, तो उस टाइम हमारा दिमाग जो होता है ना वो फ्लाइट या फाइट मोड में जाता है। या तो वहां से भागेगा या फिर लड़ेगा। और हमें हर चीज में खतरा लगता है, हमें डिप्रेशन और एग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग के अंदर कोर्टिसोल जो हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो पैदा होता है, जो हमारी सेहत को भी नुकसान देता है। मनफी ख्यालात में हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हमें कभी भी जो है वो सुकून नहीं मिलेगा, या हमें ये चीज कभी भी ठीक नहीं होगी। तो सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि उनके दिलों पे सुकून उतारा। और क्या हुआ कि वजह क्या थी कि एक तो साबिका
उनका अमाल, साहबे का लाइफस्टाइल, जिस जिस पैटर्न पे वो चल रहे थे, उनको उन्होंने उस पैटर्न ने उनको बुरे रवैये से और मनफी ख्यालात से रोका, अल्लाह की रहमत की वजह से। और दिल में इताअत अल्लाह और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गालिब रही, उस वक्त भी, उस इंतहाई वक्त पर भी, जो कि सुकून का बायस बनी। वरना क्या था, उस वक्त जज्बात में आकर ऐसे कलेमात अगर निकल जाते कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का बायस बनते, तो ईमान में कमी का बायस बनते। या अगर वो जबरदस्ती कोशिश करते उस चीज को दबाने की, तो इताअत और इताअतुल्लाह और इताअत रसूल के बगैर दबाने की कोशिश करते, तो वो दिल में कुदूरत और बददिली का बायस बनती, बेएतबारी लेकर आती। तो ये रहमत की अल्लाह ताला ने उन पर, इसलिए कि उन्होंने ईमान को महबूब रखा अपने दिलों में, तो अल्लाह ताला ने उनके उस कदर को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, और उनके अंदर ईमान को ही महबूब रहने दिया। तो ये एक बहुत अहम चीज है उस टाइम के ऊपर, जब हम अपनी अगर खुदा ना खास्ता हम पर कोई ऐसी कोई आजमाइश आती है, तो हमें इन चीजों की बजाय कि हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत सब्र कर चुकी हूँ, बस अब मजीद हिम्मत नहीं है, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस सब कुछ खत्म हो गया, ये वाली चीजें हमें उस टाइम कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें अम, अपने आप को उस टाइम पर भी कंपोज्ड रखने की जरूरत है, कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये आजमाइश जो है ये मेरी हिम्मत ही खत्म कर देगी, ये मेरी कमर तोड़ देगी, हम उसको एक नई सोच ये दें कि ये मुझे मजीद मजबूत करने आई है। बजाय इसके कि लोग मेरा कहें, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, तो हम कहें कि अल्लाह ताला की मुझे अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की बड़ी मेरे ऊपर करम है कि लोग मेरे पास जो है वो मेरे से मदद लेते हैं, और मुझे इस काबिल अल्लाह ताला ने बनाया कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, और अल्लाह ताला के जो पूरा तवक्कल रखना। और उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम ना करें, आपने अपना काम साथ साथ करना है, वो है ना आकिलहा व तवक्कल, कि आपने ऊंट को बांधना है और उसके साथ अल्लाह पर तवक्कल करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप कुछ ना करें और आप सिर्फ तवक्कल करें, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं। और इसके साथ दुआ, और दुआएं बेशुमार हैं, मसनून दुआओं को अगर आप देखें, आजकल तो एप्स में भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो उन अल्फाज का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की हैं दुआएं, तो आप कभी मान सकते हैं, लेकिन वो दुआएं कामिल हैं, बड़ी आसान दुआएं हैं, उनको भी ज़रूर याद कीजिए। तो हम बेसिकली बात यह है कि हम जिस पैटर्न पर चल रहे होते हैं, उसी पैटर्न पर हम आने वाली आजमाइश में भी हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर वही होता है। बाज दफा आजमाइशें हमारे उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए भी आती हैं। बाज दफा कोई एक ऐसी आदत या कोई एक ऐसा गलत रवैया हम अपना चुके होते हैं जो एक कंफर्ट लेवल के ऊपर रहकर टूट नहीं सकता, और वो हमारे आने वाले वक्त के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये अल्लाह की रहमत होती है बाज दफा, कि उस पैटर्न को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला की रहमत होती है कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी तंग गली से गुजारता है कि जहां पर जिससे गुजर कर हमारी वो जो एक आदत बन चुकी होती है, हम उसको तोड़ते हैं। और जब हम उसको तोड़ते हैं, तो हमें फिर आगे मजीद रास्ते नजर आते हैं जो शायद हमें पहले कभी भी नजर नहीं आए थे। और अगर हम उसी पैटर्न पे रहते तो हमें नजर आ ही नहीं सकते थे। तो वो हमें नए दरवाजे जो नजर आते हैं, नए रास्ते जो नजर आते हैं, वो हमें नई मंजिलों तक पहुंचाते हैं, नई बुलंदियों तक लेकर जाते हैं। तो ओवरऑल क्या इसके अंदर ये है सबक सूरतुल फतह का जो हमने आज पढ़ा, कि बज़ाहिर बाज दफा नजर आने वाली मुश्किल, बज़ाहिर बाज दफा नजर आने वाला दुख, हादसा, तकलीफ, परेशानी, बाज दफा जो हमें लग रही होती है कि हमें शिकस्त हो गई है, हम हार गए हैं, हमने सब कुछ लूज कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, हम खाली हाथ रह गए, तो ऐसा नहीं होता। वो उसके अंदर छुपी हुई हिकमतें होती हैं, उसके अंदर छुपी हुई कामयाबियां होती हैं, उसके अंदर छुपी हुई फतह होती है, जो कि हमें आने वाले वक्त में हमें नजर आती है। शर्त यह है कि हम उस वक्त अपना एटीट्यूड क्या रख रहे हैं, क्या हम उस वक्त भी
اطاعت اللہ اور اطاعت رسول پر ہی ہیں کہ ہم اس وقت بھی سمینا و اطعنا ہی کریں، یا ہم اس وقت جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور اپنی، یہاں تک کہ ہم اپنی جو بنیادی ہمارے فرائض ہیں اس سے بھی جو ہے وہ غافل ہو گئے؟ تو یہ سورۃ الفتح ہمیں بہت خوبصورت ایک انالیسس دیتی ہے اس چیز کے اوپر، اور جب ہم اس پیٹرن پر چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تھامتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اپنے اپنے لشکروں سے ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس لیسن کے اندر کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو اس وجہ سے زیادہ بات نہیں کی جا سکی۔ کوشش میں نے کی ہے کہ آپ تک اس چیز کو جو میسج تھا وہ پورا پہنچا سکوں۔ تو یہیں پر ہم اپنا لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الصابرین واہدنا الی صراطک المستقیم، واغفر لنا ذنوبنا وادخلنا فی جنتک النعیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔